دعا کر رہی ہوتی ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور خدا اسے سیموئل جیسا بچہ عنایت کرتا ہے۔ سیموئل جیسا بچہ جب خدا اسے عنایت کرتا ہے تو وہ جب دودھ چھڑاتی ہے تو دودھ چھڑاتے ہی وہ خدا کی ہیکل میں ایلی کاہن جو ہے اس کو وہ دے آتی ہے۔ جب وہ اس کو دے آتی ہے، جب تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ خدا اس کے ذریعہ سے کام کروانا چاہتا ہے، خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے اپنی خدمت کا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا یا میں اسے دودھ چھڑاؤں گی تو میں خدا کے حضور اسے خدا کی ہیکل میں دے آؤں گی۔ تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایلی کاہن کو دے آتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، چلنا پھرنا اسے قبول ہوتا ہے یا چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آواز آتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، جاگ جاتا ہے اور وہ ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا میں نے تجھے نہیں بلایا، جا سو جا۔ پھر وہ دوسری بار ایسا ہوتا ہے، پھر جب تیسری بار ایسا ہوتا ہے تو وہ ایلی کاہن کے پاس پھر جاتا ہے تو ایلی کاہن اسے کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ تجھے کون بلا رہا ہے، تجھے خداوند بلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سیموئل کو کہ اب تجھے جب خدا کی آواز آئے، جب وہی آواز آئے تو تو نے کہنا ہے اے خداوند میں حاضر ہوں، اے خداوند میں تیری آواز سنتا ہوں۔ تو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو ہیں جب بچوں کو جنم دیتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے میراث ہے، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ ہم نے اولاد کو جب ہماری اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو جب چھوٹے ہی ہم نے درس دینا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارا باپ ہے، خدا یسوع مسیح ہمارا بچانے والا ہے، وہی ہمیں چھڑانے والا ہے، اس نے کوہ کلوری پہ ہمارے لیے اپنی جان دی۔ سو ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم نے اس فانی دنیا سے کوچ کر کے ہم نے اپنے ایام پورے کر کے، چاہے 10 سال ہے، چاہے 5 سال ہے، چاہے 1 دن ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہی تربیت دینی ہے، یہی سکھانا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور جس کے متعلق خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب ہم شکر گزاری کے متعلق سیکھتے ہیں تو زبور نویس کہتا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو دعا کیا کرو، جب تم خوش ہوتے ہو تو ہم کے گیت گایا کرو۔ سو وہ رسول فرماتا ہے کہ دونوں وقتوں میں تم خوش رہو، چاہے تم اعزاز ثانیوں میں ہو، چاہے تم دکھوں میں ہو، چاہے تم پریشانیوں میں ہو، ہر وقت خداوند کا شکر گزاری کرے، شکر ادا کرے۔ جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں چاہیے کہ خداوند کی شکر گزاری کرے، جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب خدا ہمیں کوئی بڑی نعمت عطا کرتا ہے پھر بھی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن شکر گزاری کو 2 کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں، 2 قسموں میں ہم لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے منت، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مسیح جو بہن بھائی ہیں وہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی کام ہمارا ہوتا ہے، کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کی قربانی کرتے ہیں۔ کیسے شکر گزاری؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد نامہ میں ہم اسے منت کہتے ہیں، لیکن جب ہم رسولوں کی خدمت میں مسیح خداوند کے دور میں جو فضل کا دور ہے اس میں آتے ہیں تو اس میں شکر گزاری جو ہے وہ ایک اور کیٹیگری میں آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ منت ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند میرا گھر نہیں، خداوند تو مجھے یہ گھر عطا کرے گا تو میں تیرے حضور ایک دیکھ دوں گا، خداوند میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، ایگزام میں پاس ہوگا تو خداوند میں تیرے لیے فلاں فلاں، کوئی بھی سمجھ لے کہ منت مان لے، اور جب وہ منتیں پوری ہوتی ہے تو ہم خدا کے حضور شکر گزاری خدا مانتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں خداوند تو مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کر تو میں تیرے حضور فلاں فلاں ہدیہ دوں گا، شکر گزاری گزاروں گا۔ تو یہ ہے منت کہ خداوند تو میرے لیے یہ کر تو میں تیرے لیے یہ کروں گا۔ خدا ایسی شکر گزاری نہیں قبول کرتا۔
खुदा फरमाता है कि मेंढे मेरे, बैल मेरे, बछड़े मेरे, सोना मेरा, चांदी मेरी, हवानात मेरे, जमानात मेरे, सब कुछ दरिंद परिंद हर एक चीज जो आसमान के नीचे है वो मेरी है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। जबकि वो कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया हुआ है वो मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। और वाकई हकीकत में वो हमारा कुछ नहीं, हमारे सांस हैं ये भी हमारे नहीं, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम चलते हैं, ये भी हमारे नहीं, ये भी इमानत के तौर पर खुदावंद ने हमें अता किए हुए हैं। देख लें, मिसाल के तौर पर हम किसी को कुछ चीज देते हैं, वो हमारे साथ वादा करता है, तो जब वो वादा पूरा होता है तो वो उस अमानत को वापस मांग लेता है। वो कहता है कि तूने मुझे कहा था कि मैं 1 माह 2 माह 1-2 साल में वापस कर दूंगा, तो अब वो वक्त आ गया है, तुम मुझे वापस कर दो। तो हमें क्या करना, हम इनकार करते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह खुदा ने जो हमें सांस दिए हैं, ये जो जिंदगी दी है, ये खुदा की अमानत है। वो जब जी चाहे, उसकी बनाई हुई हम उसके हाथ की कारागरी है, जब चाहे वो हमसे मांग सकता है। हम उसके हुक्म की हुक्मतुल्ली नहीं कर सकते, हम उसे वापस दे सकते हैं। हम इनकारी करें भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हम खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चाहे हमारे इस दुनिया में जितने भी अयाम हैं, जितना भी वक्त है, हम खुदा की कुर्बत में गुजारें। हम उधर इधर के बातों में ना वक्त गुजारें। जितना भी वक्त हमारी जिंदगी में खुदा ने दिया है, हम खुदा की हुजूरी में गुजारें, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो उससे सबसे अहम बात वो की कि तू मेरी इबादत कर और मैं तेरी रोटी रोजी पे बरकत दूंगा। खुदा ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, हमने और ज़रूरतों फिक्र तरद्दुद के लिए खुदा ने हमें पैदा नहीं किया। लेकिन हम अपनी अपनी ज़रूरतों में, अपनी अपनी मुसीबतों में फंस चुके हैं, अपने अपने मसलों में जकड़े जा चुके हैं। यही वजह है कि हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी नहीं गुजार सकते। इबादत के दौरान जितनी भी हमारी ज़िंदगी के अयाम है, हमें चाहिए कि हर माह, हर साल, हर दिन, हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। यूँ तो खुदावंद की इतनी अहमियत है, खुदा का इतना मुकाम है, उसका म्यार है, उसका मर्तबा है कि हमारी उम्रें ख़त्म हो सकती हैं, पैदा होने से मरने तक जितने भी अयाम हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन खुदा की तारीफ़ हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की तारीफ़ सबसे आला और हमारी अकल सोच से बालातर है। इसीलिए जब खुदा हमें औलाद देता है तो हम खुदा के तो शुक्रगुजारी गुजारते हैं। लेकिन शुक्रगुजारी का यही मतलब है कि हर वक्त ये नहीं कि हमारा काम हो गया तो हम कहें कि खुदा तेरा शुक्र है। खुदा का बंदा पालूस फरमाता है कि उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते खाते पीते हर वक्त खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। इफ्सियों के खत में रसूल फरमाता है और सब बातों में तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहो। हर वक्त हम बेशक दुनिया के फिक्र तरद्दुद में घिरे हुए हैं, लेकिन अपने हकीकी मालिक को याद रखें, जिसके पास हमने एक दिन लौट के जाना है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई दरवाज़ा नहीं, और कोई जरिया नहीं, एक ही हमारा जरिया है, जो जिसने कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, उसके वसीला से कोई खुदा के पास नहीं जा सकता। हमें चाहिए कि हमारे इस दुनिया में जितने अयाम हैं, जितना खुदा ने हमें वक्त दिया है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि कोई हमारा काम हो गया तो हम शुक्रगुजारी करें, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर शुक्रगुजारी ना करें। मैंने आपको बताया कि खुदा का बंदा फरमाता है, जब तुम खुश होते हो तो हम के गीत गाया करो, जब तुम परेशान होते हो तो दुआ किया करो। सो दोनों वक्तों में हमें चाहिए कि हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते रहें, हम उनके गीत गाते रहें। बेशक हमने इस दुनिया में रहना है, हमने इस दुनिया में जितने भी वक्त गुजारना है, हम हमेशा इस शुक्रगुजारी को कबूल करते रहें, क्योंकि सबसे अहम जो कुर्बानी है, सबसे जो हमारी इबादत जो खुदा के हुजूर कबूल होती है वो शुक्रगुजारी है। इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं, इससे बढ़कर कोई हमारे नगमे नहीं, इससे बढ़कर कोई हमारे गीत नहीं,
कोई कुछ नहीं है। जब भी हमारा काम हो फिर भी हम कहें कि खुदावन तेरा शुक्र है, ना हो फिर भी हम कहें कि खुदावन तेरा शुक्र है। हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें। आज भी खुदावन यीशु मसीह बाहें खोले हुए में बुलाता है और कहता है कि मेरे पास लौट आओ। बेशक हमें दूसरे लोग गुमराह करते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वहाँ आपको हुरे मिलेंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। हमने सिर्फ अपने हकीकी मालिक, अपने हकीकी खुदावंद के मुताबिक सोचना है, जिसने हम जाते वक्त ये कहा आसमान और जमीन टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेगी। हमने उस हकीकी मालिक को देखना है, उस हकीकी मालिक की बातों पर अमल करना है। बेशक हम उनके साथ काम करते हैं, चलते फिरते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? आप बेशक उनके साथ चलते हैं, बैठते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा तरीकाकार है कि हमने उनके साथ चलना है। जब तक हम उनके साथ नहीं चलेंगे हमारा गुजारा नहीं होता। हम उनके नीचे काम करते हैं, बेशक हम उनके ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमने उनके मुतहत रहना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि आला फरिश्तों के ताबे रहो, हमने ताबे रहना। लेकिन जब ईमान की बात आती है तो हमने अपने ईमान से मुहर्रफ नहीं होना, हमने अपने ईमान को नहीं खोना। उसी खुदावंद ने एक आयत मुबारक फरमाई जो आप सबको पता है। उसने कहा कि जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। जान देने तक वफादारी का ये मतलब है कि चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हमने उसका वफादार रहना है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, हमने उसके साथ वफादार होकर जिंदगी गुजारनी है। चाहे घर में भूख है, चाहे घर में परेशानी है, हमने हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना है। और गुरु फरमाता है कि हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहो। खुदावंद की तुम्हारी बात यही मर्जी है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदावंद के शुक्रगुजारी करते रहें, चाहे हमारा कोई काम हो या ना हो। मैंने आपको बताया कि हम गैर कौम में रहते हैं, लेकिन हम अपने ईमान से हाथ ना धो बैठे। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के जितने भी कबीले हैं, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, एक वक्त आएगा कि सब कतारों में खड़े होंगे हाथ बांध के। जिस तरह आप जानते हैं कि कोई हॉस्पिटलों में या बिल अदा करने जाते हैं या और थाने में कुछ मुलजम जाते हैं, तो जब एक मुलजम को मार रहे होते हैं तो बाकी जो अंदर होते हैं वो खौफ के मारे डर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि कहीं हमें ना ये बाहर निकाल के मारें। ठीक है, इसी तरह दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के जितने भी कबीले हैं, सारे कतारों में खड़े होंगे और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे और कहेंगे खुदावन हमारा इंसाफ अच्छा हो। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया, उसने अपने रसूलों को फरमाया कि उन्होंने कहा कि ऐ मसीहा, ऐ खुदावन, ऐ मेरे रब्बी, ऐ मेरे आका, हम सब छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने बताया, खुदावन यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया, उसने हुक्म सादर किया, उसने कहा तुम मेरे साथ तख्त पे बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और हमें यकीन है हम इस वक्त जितने भी मसीह हैं या पूरी दुनिया के अंदर जितने मसीह हैं, सब बैठकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो हम इंसाफ करेंगे। अगर मसीह ने हमें कहा है तो वाकई हम इंसाफ करेंगे, क्योंकि मसीह की ज़बान मुबारक से एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ निकला हुआ हमारे लिए हर्फ़ आखिर है। हमें कोई भी ईमान से मुहर्रफ करे ना करने पाए। किसी ने कहा कि जान जानती है तो जाए पर ईमान ना जाए। जान फिर आसमान पे मिल जाएगी, जान ना जमीन पे मिलेगा ना आसमान पे मिलेगा। जान जानती है तो जाए पर ईमान ना जाए। हमने हमेशा जब तक हमारे इस दुनिया में अयाम है, हमने मसीह खुदा का वफादार बन के रहना है, उसके साथ हमने रहना है। तो वो ही बात ज़बूर फरमाता है, वो कहता है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हमने हर वक्त, चाहे हमारी औलाद है, चाहे हमें मुकाम मिले, चाहे कुछ भी मिले, हमने हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। हमने हर वक्त खुदावंद के साथ रहना है। आज का कलाम हमें हासिल कलाम ये सिखाता है कि हर वक्त, चाहे हमारा कोई काम हो या ना हो, चाहे हमें खुशी मिले या ना मिले, चाहे हमें आसानियों में वक्त गुजारना पड़े, चाहे हमें भूख तंगी में वक्त गुजारना पड़े, हमने हर वक्त खुदावंद के शुक्रगुजारी करवानी है, क्योंकि खुदावंद के नज़दीक
अहम हमारी इबादत है। सब इबादतों से बढ़कर जितनी भी हम साल में इबादतें करते हैं, सबसे बढ़कर जो इबादत शुक्रगुजारी की कुर्बानी है वो खुदा के हजूर हमारे लिए है। आए हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदा के हजूर अपनी मुनाजात इल्तिजाएं पेश करेंगे। ऐ खुदा